Hello friends. So now we will discuss question number 13 of GS Mains paper 2. Now question number 13 is about the local self-government. So local government means panchayat as well as municipalities. So it has been mentioned that the uh, uh, strength and sustenance of local institutions in India. So their strength have shifted from three Fs. Okay, three Fs is funds, functions, and functionaries to the contemporary stage of functionality. So the question, if you understand the question correctly, it is saying that previously previously three Fs are the main area under which municipality or local self government or local institutions they are mainly concerned with three Fs. So three Fs is funds, functions, and functionaries. So funds is proper devolution of funds, है ना? Now, as you already know that in the present scenario, local institutions in India they have very little power to impose or to charge taxes, to impose taxes and to collect taxes from the common people. So it has to depend upon the funds which are being devolved by the state government or and also by the not only by the state finance commission. So both state finance commission as well as central finance commission, ठीक है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, और क्या होता है, कहाँ से इनको फंड्स मिलते हैं, जो ये कलेक्शन करते हैं टैक्सेस का, जो कि बहुत कम पावर है इनके पास, है ना, प्लस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स प्लस स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है. सो स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, अगर फंड आ रहा है, सो दैट इज टाइड फंड and this is untied fund. Okay, so these are the main sources of revenue for the local institutions in India. But so as you already know that this is a very big issue, funds, because local institutions in India they got very less funds which actually has is to be devoted to them, but they get very less funds. Why they get very less funds? Because their power to collect the taxes is very less. They are not devolved the proper that functions we will discuss, but their power to impose the or authority to impose the collection of taxes is too less, and also this whatever recommendation is being given provided by Central Finance Commission and State Finance Commission has not been properly obeyed by the respective governments. That is why their funds, so they are always shortage. There is always shortage of funds to local institutions in India. So three Fs are the main you can say fund, functions, and functionaries are the main issues, ठीक है ना, of local institutions. मेन मुद्दे यही है. फंक्शंस, नो प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस, है ना. As you already know that the 73rd and 74th amendment, it just provides that these functions should be devolved to the local institutions, or these subjects should be given to the local institutions so that they can govern the areas under those subjects. But state governments have not devolved proper authority to the local institutions, or the subjects like health, education, land, roads,
water, these type of local subjects, even the authority is not been devolved properly to the local institutions. So no proper devolution of functions as well. And functionally, यानी कि no staff is available. Staff ही नहीं है इनके पास. They don't possess the power to appoint their own staff, so they depend on the, they have to depend upon the state government to get staff for its functioning. ठीक है ना. अब क्या हुआ, इन 3Fs की वजह से जो शॉर्टेज हुई है, फंड्स में शॉर्टेज, फंक्शन में शॉर्टेज, फंक्शनरीज में शॉर्टेज, इसकी वजह से फंक्शनैलिटी हैज बीन इम्पैक्टेड टू अ greater extent, to great extent. So the issues which were pertaining to the lack of funds, the functions, lack of functions, and the functionaries have now been evolved to the lack of functionality. So now you can see the lack of functionality in the local institutions. So they are not able to properly function and as per the demand of the constitution, or as per whatever has been required, has been expected from them in the constitution. They are not able to fulfill those duties due to lack of funds, functions, and functionaries. So we will discuss what are the issues which these institutions face in properly discharging their functionality. So main issues are, so major issues in functionality. What are the major issues in functionality? तो उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे. एक तो जैसे मैंने बताया, नो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, है ना. फंड्स नहीं होते हैं, इसी वजह से क्या होगा, बैड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने उसका एग्जीक्यूशन बैड होगा. बैड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, और बैड की जगह पुअर लिख सकते हैं, पुअर. नो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स. देन so no devolution of funds. Then no devolution of authority. So authority नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, सैनिटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो एक्चुअली क्या है ना, ये 73rd and 74th अमेंडमेंट है, जस्ट प्रोवाइड दी सब्जेक्ट्स विच कैन बी डिवोल्ड, है ना. 29 तो आपके पंचायत में है and 18 are in municipalities which can be devolved, and left it to the state government to whatever to their cognizance, to whatever subjects they want to devolve to the local institutions. So it depends on them, out of 29, out of 28. Okay, so due to this, because it has been left to the mercy of the state government, so state government have not devolved functionality, proper functions to local institutions, and most over to have to exercise control over these institutions, they keep these majorly these subjects to them. So authority over these subjects they keep up to them, and devolved as less as possible, subjects as less as possible. So very less subjects they have devolved, and they keep maximum subjects onto them, so that they can exercise control over these local institutions. So that is why no devolution of authority, they are not able to execute their functionality. ठीक है ना. No devolution of functions, no devolution of authority. Then
नो पावर और नो अथॉरिटी टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, है ना। इसके पास अथॉरिटी नहीं है कि अपना स्टाफ अपॉइंट कर सके। अब क्या होता है कि इन इंस्टीट्यूशंस में मेनली जो है ब्यूरोक्रेट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं स्टेट एंड सेंट्रल के, वो इसमें मेनली अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब क्योंकि इनके पास अपना स्टाफ नहीं होता और वो लोग क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि वो स्टेट सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के होते हैं, तो क्योंकि वो उनके अपने स्टाफ नहीं होता पंचायत का, तो इस वजह से क्या होता है, या फिर म्यूनसिपैलिटी का, इस वजह से क्या होता है, द स्टाफ द ब्यूरोक्रेट्स विच आर द स्टेट ब्यूरोक्रेट्स, है ना, they are not, they don't feel accountable, they don't feel accountable to their duties or to their function, whatever functions they need to execute, they feel very less accountability because they already know that after 1 year 2 years 3 years they will be going back or going some in some other service or going to have another post, other than the post in panchayat and municipality, because they are on deputation basis or they have been transferred from from the state services to the panchayats and municipalities, to the local institutions. So because they feel very less accountability and the panchayat do not have the authority to appoint their own staff, therefore their functionality has been impacted to a very large extent. This is also one of the reason to which impact or which actually is the one of the major issues in the functionality of local institutions. Then elections जो होने चाहिए 5 years में, every 5 years has been conceptualized or has been written in the constitution. So every 5 years elections have to be held regularly. But we have seen that there are many panchayats in the country where the elections have not, where they are dissolved even before completing their 5 years, and then their reconstitution has not taken place within 5 years, means after they have dissolved, so within 6 months 1 year, so it has been passed and still their reconstitution does not take place. So regular elections have not been, which after 5 years it has to be conducted. So periodic elections which has to be conducted after 5 years, they doesn't take place on a regular basis. So election do not conduct every 5 years on a regular basis. This is one of the major issue. So if you're not constituting these local institutions, so how can you expect functionality from these institutions? और जैसे मैंने बोला कि जो फाइनेंस कमीशन, जो उनको डिवोल्यूशन होता है फंड्स का, फाइनेंस कमीशन का, वो मैंडेटरी नहीं होते उनकी रिकमेंडेशंस। तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, वो जो डिवोल्यूशन होता है वो नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि दे ऑलवेज हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स विद देम टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। इन एडिशन सेटिंग, अगर आप जानते हैं कि मेट्रो सिटीज में कंस्टिट्यूशन ऑफ पैरास्टेटल बॉडीज, है ना। जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी मिशन है, और स्मार्ट सिटी मिशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मेनली वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, लोकल इंस्टीट्यूशंस को, म्यूनिसिपैलिटीज को डिवोल्यूशन किया जाना चाहिए एज पर दी 74th अमेंडमेंट। सो स्मार्ट सिटी मिशन जो कि SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसके लिए कंस्टिट्यूट करती है गवर्नमेंट, जो कि अपैरेलल बॉडी है म्यूनिसिपैलिटी के, जो कि ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के जो विच आर रिलेटेड टू दी स्मार्ट सिटी मिशन, एंड जिसमें सैनिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर के प्रोग्राम्स हैं, एंड रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम्स हैं, लाइटिंग के प्रोग्राम्स हैं टू गिव पावर। सो स्मार्ट सिटी मिशन में बेसिकली SPVs का कंस्टिट्यूशन करते हैं, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज का जो भी मेन पावर्स हैं जो कि म्यूनिसिपैलिटी के पास होती हैं, वो SPV को दे दी जाती हैं।
पैरेलल पैरास्टेटल बॉडीज जो कि उनकी पावर, जो कि एक पैरेलल अथॉरिटी है क्रिएट कर दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो जाती है। उसके अलावा आप जानते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं जिनके पास बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। तो ये भी कह सकते हैं, जैसे गाजियाबाद में आप जानते हैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा में ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सो दीज टाइप ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी सिटीज। सो इस टाइप की पैरास्टेटल बॉडीज कंस्टिट्यूट कर दी जाती हैं। उसके अलावा आप जानते हैं बोर्ड्स कंस्टिट्यूट किए जाते हैं, वाटर बोर्ड, और देन वी हैव दी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रांसपोर्ट बोर्ड। सो ये जो भी फंक्शंस है ना, ये अलग अथॉरिटी देखती है कोई। जैसे जैसे वाटर के लिए एक अलग आपने एक जल निगम की स्थापना कर दी वाटर के लिए, देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग विभाग बना दिया। तो बेसिकली ये सब जो है वो म्यूनिसिपैलिटी को जाने चाहिए, बट बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो पैरेलल बॉडीज क्रिएट कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन म्यूनिसिपैलिटी के पास बहुत कम फंक्शंस बचते हैं, और ये फंक्शनैलिटी जो इनसे एक्सपेक्टेड है वो ये नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि बहुत सारी पैरास्टेटल बॉडीज पैरेलल वो क्रिएट कर दी गई हैं हमारे सिस्टम के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं एक्चुअली। उसके अलावा आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, डीपीसी, जो क्या करती है, सब पंचायत, जैसे मान लीजिए पंचायत 1 है, देन वी हैव पंचायत 2, ठीक है, पंचायत n। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत हैं सबसे डेवलपमेंट प्लान लेती है कि पर्टिकुलर पंचायत का डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, इस पंचायत का डेवलपमेंट प्लान क्या होगा। तो इसी तरीके से सब पंचायत से डेवलपमेंट प्लान लेती है, डीपीसी इसको कंसोलिडेट करती है एंड पुट फॉरवर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फंड्स के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है। एक्चुअली ये जो डिवोल्यूशन होना चाहिए फंड्स का, ये वो होना चाहिए, दैट शुड बी अनटाइड, किसी प्रोग्राम के साथ टाइड नहीं होना चाहिए, और ये कोई एक प्लान के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लिंक, बट एक डिवोल्यूशन होना ही चाहिए पंचायत को, क्योंकि हर पंचायत को डेवलपमेंट करना ही करना है। लेकिन फिर भी ये प्लान्स कंसोलिडेट करके भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट के कॉग्निजेंस पे डिपेंड करता है कि वो उस डेवलपमेंट प्लान के अंदर कुछ भी, अगर वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, या हो सकती है जो फंड मांगा गया है वो फंड डिवोल्व ना करे, है ना, ऐसा हो ही सकता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टेट गवर्नमेंट कई जगह तो क्या है ना, डीपीसी ही सेटअप नहीं की गई है। अब डीपीसी सेटअप नहीं करने की वजह से क्या होता है, जो इनका डेवलपमेंट प्लान है वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो या तो डिवोल्यूशन, जैसे कुछ डिवोल्यूशन जो 42% सेंट्रल फाइनेंस अभी स्टेट को कर रही है, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो इनको डिवोल्यूशन होता है, दैट शुड ऑल्सो बी मैंडेटरी। अब वो मैंडेटरी होना चाहिए और अनटाइड होना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट इनको जो भी फंड दे रही है, दैट शुड बी अनटाइड एंड दैट स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन शुड बी मेड मैंडेटरी, ठीक है ना। तो डीपीसी की सेटअप ना होने की वजह से क्या है, इनके प्लान्स नहीं पहुंच पाते स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो फंड्स की डिवोल्यूशन होनी है वो नहीं हो पाती, ठीक है। ये वन ऑफ द मेजर इशू है कि कई आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में डीपीसी की सेटअप नहीं की गई है। इन एडिशन टू इट, इनका ना सोशल ऑडिट नहीं होता है, सोशल ऑडिट, ठीक है ना। फाइनेंशियल एज वेल एज सोशल ऑडिट बोथ शुड टेक प्लेस, दे शुड गो हैंड इन हैंड, बिकॉज फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। करप्शन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं तो करप्शन को अगर आपको कब करना है, तो देयर शुड बी ए थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट एज वेल एज सोशल ऑडिट शुड ऑल्सो टेक प्लेस। अब फाइनेंशियल ऑडिट क्या है कि आपके अकाउंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो कि आपको जितना पैसा मिला है आपने उसमें कितना खर्च किया और क्या एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, पहला। और सोशल ऑडिट होता है कि जो आपने इम्प्लीमेंट किए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, उसका इम्पैक्ट कितना हुआ है सोशली, यानी कि मासेज में कितना इम्पैक्ट हुआ है। So there should be two types of audit, social as well as financial audit, which should take place, which doesn't take place actually regularly. Plus also it is full of corruption. Due to corruption, the audit does not take place in a fair and transparent manner,
and their functioning has not been improved due to bad policies of audit. उसके अलावा पॉलिटिकली बहुत इंटरवेंशन है, ह्यूज पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ठीक है ना, पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने की वजह से इसमें क्या होता है, अपॉइंटेड होते हैं, तो कुछ लोग अपॉइंटेड अथॉरिटी होती है जो अपॉइंट किए जाते हैं, और कुछ इलेक्टेड होते हैं। तो ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं ना, सो दे डोंट गेट इलेक्टेड फ्रॉम, मतलब दे आर नॉट कमिटेड ऑफिशियल्स विच आर कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। तो ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड ऑल्सो वो अपने अपने बंदे सब खड़ा करते हैं किसी भी पंचायत में और उसको जिताते हैं, जबकि वो विकासशील नहीं होते, यानी कि वो दे आर नॉट डेवलपमेंट ओरिएंटेड। द ऑफिशियल्स विच आर इलेक्टेड दे आर नॉट डेवलपमेंट ओरिएंटेड बिकॉज बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती हैं ये जो सीट्स होती हैं, एंड पार्टीज हमेशा अपने कैंडिडेट इस पे खड़ा करती हैं जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि these organizations have huge political intervention and whatever projects they implement, these local institutions implement. So whatever projects they implement, those projects are influenced by the partisan as well as factional interest, यानी कि जिस पार्टी का कैंडिडेट जीता है वो अपनी पार्टी के ही प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि अपने पार्टी के ही एजेंडा को फॉलो करेगा, बजाय इसके कि वो ट्रांसपेरेंट मैनर में लोगों के लिए काम करे, ठीक है। एक ये बहुत बड़ा इशू है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज का। इन एडिशन टू इट, जो मैंने आपको बताया था अपॉइंटेड और इलेक्टेड ऑफिशियल्स, इनके बीच में सिनर्जी नहीं होती है और कॉपरेशन बहुत बेकार होता है ड्यू टू वेरी पुअर कॉपरेशन बिटवीन अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स, बिकॉज एज यू नो द इम्प्लीमेंटेशन शुड बी डन बाय अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। इम्प्लीमेंटेशन तो यही करते हैं, बट क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है दैट इट विल बी डिसाइडेड बाय दीज ऑफिशियल्स। So due to very poor cooperation between appointed and elected officials, their functionality has impacted to a very large extent. Or no political empowerment. है ना, इनका एम्पावरमेंट नहीं है। जो भी इसमें स्टाफ काम करता है, जो भी अपॉइंट होते हैं, जो भी इलेक्टेड होते हैं ऑफिशियल्स, जो भी लोग इसमें इलेक्ट किए जाते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकली एम्पावर्ड। जैसे एक तो इसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इज वेरी बैड, ठीक है, और इवन प्रॉक्सी, वुमेन इलेक्ट होके वुमेन आई हैं बट प्रॉक्सी पति होते हैं, यानी कि प्रॉक्सी पति so they are actually functioning, they are actually the main function executing authority in the local institution, even if the woman is elected, but his husband is the main executing authority, so that is called proxy pati. So women political empowerment is too less, in spite की 1/3 रिप्रेजेंटेशन वुमेन की है। प्लस दे गेट वेरी लेस कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अगर जो भी अपॉइंट होके आते हैं, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट पार्टी ए की है, ठीक है, एंड पंचायत में पार्टी बी का कैंडिडेट जीत गया, तो इनके बीच में कोई सिनर्जी नहीं होती है।
तो प्रॉब्लम क्या होती है सिनर्जी ना होने की वजह से? बिकॉज मैंने बोला पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करे, और वो प्रॉब्लम हो जाता है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती इस कैंडिडेट जो जीता है, यानी कि जो चेयरमैन बना है। तो अब इससे क्या होता है ना, वो फंड्स को डिवॉल्व ही नहीं करती, या अथॉरिटी ही डिवॉल्व नहीं करती, या उसको काम नहीं करने दिया जाता। सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है इन लोगों का। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा इन लोगों का? अगर आप इनको फंड्स, अनटाइड फंड्स डिवॉल्व करेंगे, ठीक है, अथॉरिटी मैंडेटरी डिवॉल्व की जाएगी, और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आप 1/3 मैंडेटरी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या इशू है अदर देन दिस? Last but not the least, you can say there is lack of promotion incentives and motivational, you can say promotional incentives and promotion opportunities and financial incentives, you can say, for the panchayat officials, for the officials which are been serving the panchayat, the local institutions, उन officials के लिए proper incentives और promotion opportunities नहीं होती हैं, बहुत कम सैलरी में काम करते हैं वो लोग, जिसकी वजह से they are not motivated, and due to that they are not able to execute the programs and policies of the government properly, जिसकी वजह से बहुत friction होता है, ठीक है। तो you can say promotion opportunities, promotion and financial, promotion opportunity and financial incentives too less. So these majorly these are the issues which led to decline in the functionality of the local institutions, and it is high time now to attain, if like Article 40 in DPSP is already there, which requires the state to organize the village panchayat in such a manner so that they can function as the institutions of local government or local self government. So if this goal has to be achieved, we need to devolve funds, function and functionaries properly to these local institutions so as to function them as local self government and attain the गांधी स्वराज की जो गांधी जी मानते थे ना, विलेज इज अ लोकल एंटिटी, लोकल सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी होनी चाहिए, तभी हम स्वराज अटेन कर पाएंगे। और मैं इसमें आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट का भी ग्राम स्वराज अभियान चल ही रहा है, ग्राम, जिसमें पंचायत को एम्पावर्ड करने का अभियान है, जो पंचायत को एम्पावर्ड कर रही है गवर्नमेंट, ग्राम स्वराज अभियान, and there is one अंत्योदय प्रोग्राम ऑल्सो, जहाँ पे सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को कन्वर्ज करके प्लान करके एक 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 कॉमन पोर्टल के थ्रू वहाँ पे सारे जितने भी डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं उस पोर्टल के थ्रू सारे रजिस्टर किए जाएंगे और उसी पोर्टल के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी सभी प्रोग्राम्स की। तो दिए एंड ग्राम स्वराज अभियान एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत करने के लिए, पंचायत के एम्पावरमेंट करने के लिए। सो दीज आर दी, with this the lecture has been ended. Now we will move to question number 14, which is Rajya Sabha, about the Rajya Sabha. Thank you.